Good morning, everyone. Let's wait for a few seconds since participants are getting added. So we'll wait for a few seconds. Okay. So again, I'm repeating the set of instructions, which is important for you to know. Number one, everybody, please keep your videos off so that we don't face any kind of network related issues, that is internet issues. Secondly, I am muting you all. That means I am switching off the audio system for all, but I'm allowing you to unmute yourself. So the moment you will have any doubt or I'll ask any question, you can always unmute, right? But a lot of people should not unmute themselves at one point of a time, right? Otherwise, again, it will create issues. Okay, so I hope everybody is already clear with what accounting is and what is accounting cycle. If there are any doubts, please write it down in the chat box, right? So let me revise whatever that we have already covered and then let's move further, right? So we have already studied that accounting is an art or is the process of recording, classifying. Recording, we do it in journal. Classifying, we do it in ledger account. Summarizing, which we do in trial balance. Analysis and interpretation of financial transactions, and communicating the results to the interested parties, right? So whatever results that we are able to draw by making the accounts are going to be communicated to those people who are interested in knowing the results of our financial transaction or the financial events. So मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिया था, there are certain internal parties and external parties. So internal parties are those which are internal to the organization, जो business के अंदर से operate करते हैं और वो business के results, उसके outcomes को जानना चाहते हैं. So those are called internal parties. So first important internal party is our owner. So owner is the one who is bearing the risk. So it is very important for every owner to know that how is his business operating, that whether whatever that he is doing throughout the year is actually resulting into profit or loss, right? So this is what owner wants to know. Similarly, if we talk about any external party, like let's say bank or any other financial institution which is providing us with the funds, so all such financial institutions, if they are providing us the funds, they would be interested in knowing that whether we will be able to repay the amount which we are taking from them or not. So we have to repay our loan in two ways. Number one, we have to pay the interest, which is going to accrue every monthly or bi-monthly or maybe yearly, and we have to repay the principal. So both are required to be paid by the organization which is borrowing. So it is important for us to know that whether we are having that capacity to repay the fund which we are borrowing along with the interest. So if we are profitable, only then we will be able to do it. If we are not profitable, it will be difficult for us to repay the amount. And so the loan amount which any bank has provided to you will get default, right? So in case of default, it will be a loss for the bank. So they would not be interested in providing you with the funds any further, right?
So this is one of the example that I've given you for internal and external user who are interested in knowing the financial information of the organization. Okay, so now I'm going to share the screen with you, in which I am going to show you a PDF. So I have just received, like I have received last evening, the PDF copy of SC Sharma accountancy book, right? Although I'm still trying to arrange for DK Goyal, but since DK Goyal is not available right now with me, and NCRT, I have checked for the theory content of NCRT. I think SC Sharma is writing it in a better manner and much more comprehensive it is, right? So I'm going to share it on your WhatsApp group, accountancy group. But right now I'm going to share the screen with you, in which you, or through which you are going to study the next topic of theory that we have to cover, right? Anybody who will not be clear with anything, I would again ask the person to please raise your hand. There is a sign to raise the hand, or otherwise you can always write it down in the chat box. Okay, so let's move further. And one important piece of information and instruction, I would like, whenever that I'm sharing screen, please do not play with the screen, right? Writing anything on the screen or anything like that, because it creates a visibility problem for everybody, right? So do not do anything with the screen, just read it. Okay, so anybody who has DK Goyal already, please, you can use it. But for everybody else, I think not everybody is having DK Goyal book. So for everyone else, those who don't have any book as of now, or have only the downloaded version of NCERT, I would refer them that please use the PDF copy now, which I'll be sending you after the class is over. Okay, and I'll be sharing it through the WhatsApp group. Okay, so let me show you what I wanted you to take a look at. Okay, so as we can see that we are able to see the meaning of accountancy. Everybody please go through it again. So it is writing that accounting is an art of recording, classifying and summarizing in the significant manner and in terms of money, transaction and events which are in part at least of financial character and interpreting the results thereof, right? ये वाली जो अपनी definition है, it is given by AICPPA. ये आपको as it is याद करने की जरूरत नहीं है. It is not at all required to be learned like this, but you need to understand कि इसमें एक process चल रहा है. इसमें एक आपका तरीका है लिखने का, इस definition को या इस meaning को आपको ये तरीका याद रखना है. And everything which is written here is required to be mentioned in your meaning also, right? So probably the language may shift a little, but the meaning should remain the same. Okay, so we have already covered the meaning of accounting. The characteristic also we have covered, so I'm moving further in this. I think nobody has any doubt in that. So let's move ahead. Accounting process, accounting cycle हमने किया था last class में. I want you to have a look again at the same point, at the same cycle. So this is accounting cycle or accounting process. This is one and the same. So the first accounting cycle or process, it starts with identifying the financial transaction. तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था that every financial event or every transaction that we are taking, transaction मैंने पहले कहा था आपको, it is a event which is taking place in any organization on any point of time, right? जो आपके हर दिन भी हो सकता है, एक हफ्ते में एक बार भी हो सकता है, depending upon कि वो किस frequency के साथ हो रहा है. So you have to identify that it has to be financial in nature. That means it should involve money or money's worth, right? So this is identify financial transaction. The next is recording. मैंने आपको पहले बताया था recording हम करते हैं journal में या फिर हम करते हैं अपनी सब्सिडरी बुक के अंदर, यानी कि आपकी रिकॉर्डिंग दोनों में से किसी एक जगह होगी. जहां हम पहले करेंगे वो हम करेंगे जर्नल में, मतलब जो चीज हम पहले सीखने वाले हैं थ्योरी के बाद वो हम सीखेंगे जर्नल. सो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि जर्नल इज अ बुक ऑफ प्राइम एंट्री और ओरिजिनल एंट्री. दैट मीन्स द मोमेंट द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन टेक्स प्लेस, it is required to be recorded in the book of prime entry, which is also called day book and journal, right? अगर journal आप नहीं बना रहे हैं
या जर्नल आप स्पेशली किसी एक पर्पस के लिए रखना चाहते हैं, कुछ स्पेसिफिक ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए, उस केस में हम सब्सिडरी बुक्स भी बनाते हैं। जैसा कि आपको लिस्ट दिख रही है यहाँ पर, दैट सब्सिडरी बुक इंक्लूड्स कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक एंड जर्नल प्रॉपर। दैट मीन्स जो आपको ये 5 चीजें दिख रही हैं, दैट इज कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न एंड सेल्स रिटर्न बुक, ये बेसिकली सिग्निफाई कर रही है कि जितनी भी आपकी कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शन होगी वो सब जाएगी कैश बुक में, चाहे वो कैश रिसीट हो या कैश पेमेंट हो। सिमिलरली आपकी परचेज बुक जो है, वो जितनी सारी आपकी परचेजेस होंगी जिसके अगेंस्ट आप कैश पे नहीं करते, जिसको हम अकाउंट्स की भाषा में कहते हैं क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, तो जितनी भी आपकी क्रेडिट ट्रांजैक्शन है वेयर इन द कैश इज नॉट गेटिंग पेड इमीडिएटली, वो परचेज बुक में जाएगी। सेल्स बुक में जाएगी आपकी क्रेडिट सेल्स, यानी कि जिस चीज में जब आपने सेल किया अपने प्रोडक्ट को या अपनी सर्विस को और आपको इमीडिएटली अगर कैश रिसीव नहीं हो रहा है, तो वो जाती है आपकी सेल्स बुक के अंदर, राइट? दैट मीन्स आई एम रिपीटिंग, credit sales are those sales for which we are selling our product or services but we are not receiving cash on an immediate basis, right? यहाँ पे हम कैश की जब बात करते हैं तो इट मीन्स कैश इन हैंड, यानी कि कैश जो आपको फिजिकल फॉर्म में दिया जाए या फिर आपको बैंक का चेक या ड्राफ्ट या ऐसी कोई चीज दी जाती है, तो उसको हम कैश ट्रांजैक्शन ही मानते हैं। अगर इन दोनों में से कोई भी चीज आपको रिसीव नहीं हो रही है तो it will be treated as credit transaction, right? So sales book में आपकी credit sales record होगी। purchase return book या sales return book का मतलब क्या हुआ, वो purchases जो आपने की, right, अपने supplier से, मगर आपको लगता है कि वो वही चीज नहीं आई है जो आपको चाहिए थी, that means it is not matching with your specification, or probably it is damaged, or probably it is something else that has got delivered. So in all these cases, what you are going to do is you are going to return the purchases that has been made by you back to the supplier, right? तो ये आपका आएगा परचेज रिटर्न बुक में। सिमिलरली सेल्स रिटर्न बुक, यानी कि अब जो चीज किसी ने आपसे खरीदी और वो उसके हिसाब से उसके स्पेसिफिकेशन से मैच नहीं करती, या वो डिफेक्टिव हुई, या फिर वो ट्रांजिट में वो ब्रेकेज हो गया उसमें, तो इन ऑल सच केसेस जिसको आपने बेचा है, यानी कि जिसको आप बेचते हैं, वो आपका कस्टमर कहलाता है। तो वो कस्टमर आपको आपके गुड्स रिटर्न करेगा, so that is called sales return. That means whenever that you are selling the goods to your customer and it is coming back to you because of any issues, any problem, it is called sales return. And whenever that you are purchasing any product or any raw material or anything from the supplier, and supplier means from the person I'm purchasing it, so from the supplier, and since you are not finding it as per your requirement, so you are returning it, so that is treated as purchase return. So in separate books, purchase return में purchase return transactions जाएंगी, sales return book के अंदर sales return transactions आती है, right? और जो भी इन 5 कैटेगरीज में नहीं आती वो जाती है आपकी जर्नल प्रॉपर में। सो बेसिकली जर्नल प्रॉपर इज द सेम जर्नल दैट वी हैव जस्ट डिस्कस्ड, इससे पहले जो हमने डिस्कस किया था। अब क्योंकि हम बात कर रहे हैं सब्सिडरी बुक की, तो सब्सिडरी बुक के का मतलब होता है कि आपने कुछ बुक्स उनके नेचर के बेसिस पे पहले ही अलग कर ली है, जैसे कैश बुक, सेल्स बुक, परचेज बुक, जो आपने अलग कर ली, अब उससे रिलेटेड ट्रांजैक्शन आप जर्नल में रिकॉर्ड नहीं करते। तो जो भी इस ट्रांजैक्शन के अलावा ट्रांजैक्शंस आएंगी आपके पास जो कि फाइनेंशियल नेचर की होनी चाहिए, वो सब आप रिकॉर्ड करेंगे जर्नल प्रॉपर में, राइट? सो दिस हैज टू बी सीन एंड चेक्ड। इसमें अगर आपको अभी कोई भी डाउट है आप अभी पूछ सकते हैं। इफ यू आर नॉट हैविंग एनी डाउट, इफ इट इज 100% क्लियर टू यू, ये कैसे होता है, कैसे बनाया जाता है, इसको हम आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे, क्योंकि जो भी आप यहाँ पे चीजें पढ़ रहे हैं इस वक्त, दीज आर गोइंग टू बी योर चैप्टर्स, जो आपको जिसको पढ़ना है और जिसके न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व करेंगे, राइट? सो दिस इज द थियोरेटिकल पार्ट दैट वी आर स्टडीइंग राइट नाउ। ओके, next is, that is the third step in the process, is classifying the transaction, जो मैंने आपको पहले ही बताया था that it will take place in ledger. So ledger means accounts, right? जो आपके T shape accounts बनते हैं, that is called ledger. Okay, there is a doubt, let me solve that doubt first. Difference between cash book and journal.
ओके, जैसे मैंने अभी अभी बताया आपको कि जब हम बात करते हैं सब्सिडरी बुक्स की, जो मैं बात कर रही हूँ सेगमेंट बी की, जो लिखा हुआ है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री के अंदर, तो जब हम बात करते हैं सब्सिडरी बुक्स में, तो सब्सिडरी बुक्स में अगर मैंने कैश बुक बनाया, दैट मीन्स कि कैश से रिलेटेड सारे ट्रांजैक्शंस, मतलब बी इट अ कैश रिसीट और बी इट अ कैश पेमेंट, वो सब चीजें आपकी कैश बुक में ही रिकॉर्ड होगी। हम क्रेडिट कोई भी चीज यहाँ रिकॉर्ड नहीं करते, राइट? सो दैट इज कैश बुक। जर्नल, जर्नल क्या हुआ? जर्नल, जर्नल इन दिस केस इज जर्नल प्रॉपर, सब्सिडरी बुक के अंदर हम बात कर रहे हैं। सो जर्नल प्रॉपर का मतलब होता है कि फॉर एवरी ट्रांजैक्शन विच इज नॉट गोइंग टू बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक और सेल्स रिटर्न बुक, जो इन पांचों कैटेगरी में से कहीं नहीं आएगा, वो जाएगा आपका जर्नल प्रॉपर में। तो जैसे अगर मैं बात करती हूँ कि एक दिन में आपने 10 ट्रांजैक्शंस की, कुछ थी सेल्स की, क्रेडिट सेल्स, कुछ थी क्रेडिट परचेजेस, कुछ थी कैश सेल्स, कुछ थी कैश परचेजेस, कुछ थी आपकी परचेज ऑफ एसेट, कुछ थी आपकी लाइबिलिटीज की, राइट? तो ये अलग अलग तरह की जो आप ट्रांजैक्शंस एक दिन में कर रहे हैं, उसको हम उसके नेचर के बेस पे पहले ही डिवाइड कर देते हैं। दैट मीन्स उसकी जो रिकॉर्डिंग होती है, जो फर्स्ट रिकॉर्डिंग होती है, वो उसके नेचर के बेस पे की जाती है इन केस ऑफ सब्सिडरी बुक्स, राइट? सो सब्सिडरी बुक्स में जब हम बात कर रहे हैं, तो क्योंकि मैंने ऑलरेडी 5 तरीके की सब्सिडरी बुक्स बनाई हुई है, तो जो भी जिस नेचर से रिलेट करता है, हम उस ट्रांजैक्शन को डायरेक्टली वहीं पोस्ट करेंगे, राइट? जैसे कैश ट्रांजैक्शन, मैंने अभी भी बताया कि कैश ट्रांजैक्शन है, चाहे वो रिसीट होगा या पेमेंट होगी, दोनों आपकी जाएगी डायरेक्टली कैश बुक के अंदर। परचेज बुक में जाएगी आपकी सिर्फ क्रेडिट परचेजेस, यानी कि आप सप्लायर से प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, but you are not paying cash on an immediate basis, so that is called credit transaction. So credit transaction जाएगी purchase book के अंदर. Then credit sales की transaction, wherein you are selling the goods to the customer but you are not receiving cash on an immediate basis, so that will be recorded in sales book. Then purchase return book और sales return book का मतलब हुआ कि वो goods जो मैंने मेरे supplier से purchase किए थे, but since it is not as per my requirement, जैसे आपके साथ क्या होता है, आप मान लीजिए फ्लिपकार्ट से कोई चीज ऑर्डर करते हैं एंड आपने उसको पेमेंट कर दी या पेमेंट नहीं की, दोनों केसेस के अंदर अगर आपका गुड आपकी स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग नहीं होता, तो आप क्या करते हैं, यू अप्लाई फॉर रिफंड, राइट? रिटर्न एंड रिफंड, तो ये वही चीज है। That means you have purchased something, but since it was not as per your specification, so you are returning it. So that is purchase return for you, राइट? मगर फ्लिपकार्ट के लिए क्या होगा, फ्लिपकार्ट ने वो चीज बेची थी आपको, अब क्योंकि वो आपका सप्लायर है और आप उसके कस्टमर हैं, तो जब वो सप्लायर उसको जो उसने जो गुड्स बेचे आपको, उसने जो प्रोडक्ट आपको बेचा, अब वो आपके रिक्वायरमेंट का नहीं था, तो आपने रिटर्न किया, तो अब सप्लायर के बुक में, यानी कि फ्लिपकार्ट के बुक में ये मानी जाएगी सेल्स रिटर्न, राइट? तो सेल्स रिटर्न बुक में हम इसे रिकॉर्ड करेंगे, मगर आपके लिए because you are a buyer, so आपके लिए ये आपकी purchase return कहलाएगी, so you will be recording it in purchase return book, right? And now what is journal and journal proper? Let me distinguish it for you. So journal, जब हम बात करते हैं कि जब हम एक कैटेगरी देख रहे हैं, जब हम जहां सिर्फ जर्नल बना रहे हैं, तो जर्नल का मतलब है कि अगर आप सिर्फ जर्नल ही बनाते हैं, तो सारी ट्रांजैक्शन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, जिसको हम कहते हैं डे एंड डेट वाइज, हम सिर्फ जर्नल में ही रिकॉर्ड करते जाते हैं। वी जस्ट कीप ऑन राइटिंग कि इस दिन इतनी ट्रांजैक्शंस हो गई जो कि फाइनेंशियल नेचर की थी। मगर जब हम बात करते हैं जर्नल प्रॉपर की, सो जर्नल प्रॉपर इज बेसिकली ए सब्सिडरी बुक। तो जर्नल प्रॉपर और जर्नल में ये फर्क है कि जर्नल जब बनता है तो जर्नल प्रॉपर नहीं बनता, राइट? जर्नल प्रॉपर जब बनेगा तो बाकी सब्सिडरी बुक्स भी बनाई जाती हैं, राइट, बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट। अब आप जब जर्नल प्रॉपर बना रहे हैं, तो जर्नल प्रॉपर में आपकी कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शंस नहीं आएंगी, क्रेडिट परचेजेस रिलेटेड ट्रांजैक्शंस नहीं आएंगी, क्रेडिट सेल्स रिलेटेड ट्रांजैक्शंस नहीं आएंगी, परचेज रिटर्न बुक और सेल्स रिटर्न बुक की भी ट्रांजैक्शंस नहीं आएंगी। तो बाकी जो भी ट्रांजैक्शंस बचेंगी, जैसे परचेज ऑफ एनी एसेट, सेल ऑफ एनी एसेट, बैंक लोन आपने अवेल किया या बैंक लोन आपने रीपे किया, इस तरीके की ट्रांजैक्शंस आपकी आएंगी जर्नल प्रॉपर के अंदर। या फिर आपको कोई लॉस हुआ या कोई गेन हुआ किसी परचेज या सेल में, सो ऑल दोस ट्रांजैक्शंस आर गोइंग टू बी रिकॉर्डेड इन जर्नल प्रॉपर। सो जर्नल
you record all the transaction, but in journal proper, since it is a part of subsidiary book, so we will be recording only the transactions which are not falling under any of the 5 above mentioned categories. I hope this is completely clear to you. समझ लीजिए इसे अच्छी तरीके से. I will not mind answering your questions, because अगर आपको ये अभी समझ में नहीं आया तो आगे मैं जो भी आपको बताऊंगी you will not be able to correlate. ये समझना आपके लिए थ्योरी है, मगर ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, because if you will not understand it, numerical portion would be a little difficult. We are not going to do any kind of mugging in this accountancy. So we need to understand each and everything that we are reading, right? Okay, so let's move on to the next point, which is ledger. Ledger मैंने आपको पहले ही बताया कि ledger is an account. वो हम देखेंगे कि किस तरह से बनता है. But ledger का मतलब हुआ कि अगर आप journal बनाते हैं तो उसके बाद भी लेजर बनता है, और सब्सिडरी बुक बनाते हैं तो भी उसके बाद आपको लेजर बनाना ही पड़ता है. So either of A or B you are going to use, and then we are going to use ledger. We are going to prepare ledger. Okay, I've got another request again. Ma'am, please explain journal proper once again. So journal proper का मैंने जैसे पहले बताया कि journal proper आप देखिए, journal proper आ रहा है आपके subsidiary book के head के अंदर, which is under part B. So journal proper says that any transaction which is financial in nature and which is not getting recorded in any of the book, 5 books mentioned above, जैसे cash book, purchase, sales book, purchase return and sales return book, तो अगर वो इन सारी categories में नहीं आ रहा, जिस भी transaction को आप यहाँ नहीं record कर रहे, वो आप record करेंगे journal proper में. मतलब journal proper is meant for all those transactions which are left out and are financial in nature, right? तो वो आपका जाता है journal proper के अंदर, और वो journal proper बिल्कुल सेम हम वैसे ही तरीके से बनाएंगे जैसे हमने journal बनाया था, बस journal में हमने सारी entries record की. journal proper के अंदर हम particular entries को ही record करेंगे जो कि हमारी इन ऊपर लिखी हुई 5 में से किसी books में भी नहीं आ रहा होगा, right? Let's move on further. Let's move on to the 4th point, which is summarizing. So summarizing, okay, summarizing का बेसिक आपका मतलब होता है कि जो भी आपने सारे लेजर अकाउंट्स बनाए हैं, अब आप उनका नेट इफेक्ट निकालिए, राइट? Okay, there is one more doubt. I'm just interrupting this in between. Can we make a particular subsidiary book along with journal? बच्चे जर्नल अगर आप बनाते हैं तो पर्टिकुलर सब्सिडरी बुक नहीं बनाते, फिर आप जर्नल प्रॉपर बनाते हैं, राइट? मतलब अगर आपने सब्सिडरी बुक बना रहे हैं आप, तो आप सब्सिडरी बुक बनाइए और उसके अंदर जो बुक्स आपको बनानी है, मान लेते हैं मैं कैश बुक बना रही हूँ, तो कैश बुक बनाइए आप, और उसके साथ आप बनाएंगे जो जर्नल, उसको कहा जाएगा जर्नल प्रॉपर. इट विल नेवर बी कॉल्ड जर्नल सेपरेटली, राइट? क्योंकि जब जर्नल अकेला बनता है तो फिर सब्सिडरी बुक की कोई जरूरत नहीं होती, मगर आप जब सब्सिडरी बुक बनाते हैं तो जर्नल जो बनेगा उसके साथ वो जर्नल प्रॉपर कहलाएगा. यू नीड टू रिमेम्बर दिस वेरी क्लियरली. With subsidiary book, we do not make journal. We make journal proper. We call it journal proper. Okay. Ma'am, what is the difference between journal A and journal B? Journal proper. मैंने अभी भी समझाया था कि journal A means सारी transactions record हो रही हैं जो financial nature की है, जो कि आप record कर रहे हैं सारी date and day wise. जैसे आज 13th April है तो 13th April को कितनी financial transactions हुई, सारी record कीजिए, right? मगर journal proper के अंदर you will be recording only those transactions which are not recorded in any of the 5 mentioned books. Okay, there's one doubt which I've received an example of entry in journal proper. Entry, अगर मैं आपको entry बताऊं, cash account debited to bank account, अभी आपको इस बात का कुछ भी मतलब नहीं समझ में आएगा. What is cash account debited to bank account for you? Nothing, right? Because you don't know the rule of debit and credit. You don't know what is debit and credit as of now. तो entry में नहीं समझाऊंगी, मगर मैं बता देती हूँ कि journal proper के अंदर आता क्या है. जैसा मैंने पहले बताया, listen to me very carefully. जो भी चीजें कैश बुक में, परचेज बुक में, सेल्स बुक में या फिर परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न बुक के अंदर नहीं आ रही है, वो आपकी जा रही है जर्नल प्रॉपर में. कैश बुक के अंदर आपने लिया कैश रिसीट, कैश पेमेंट, तो कैश रिसीट एंड कैश पेमेंट यही कैश बुक में फिनिश हो जाता है.
सबसे सेल्स बुक परचेज बुक में आपने लिया क्रेडिट सेल्स क्रेडिट परचेज, परचेज रिटर्न सेल्स रिटर्न में लिया आपने परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न की ट्रांजैक्शंस, राइट। तो उसके अलावा अगर मैंने क्रेडिट में कोई ट्रांजैक्शन की है, जैसे क्रेडिट में अगर मैंने बिल्डिंग परचेज की है, या फिर क्रेडिट में मैंने सेल्स की है अपने किसी एसेट की, एसेट मींस लेट्स से मैंने बिल्डिंग ही सेल की मगर मुझे पैसा इमीडिएटली नहीं मिला, राइट। सिमिलरली मैंने कुछ परचेज किया इन्वेस्टमेंट मगर मुझे पैसा इमीडिएटली मैंने नहीं दिया है, सो इट्स अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन फॉर परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट। या फिर मुझे कोई लॉस हुआ है, राइट। जैसे मान लेते हैं कि मेरा मैंने जिसको बेचा अपने क्लाइंट को, जिसको मैंने प्रोडक्ट बेचा है, जो मेरे लिए मेरा बायर है, वो उसने मुझे पैसा नहीं दिया टाइम पर वापस, तो वो मेरे लिए डिफॉल्ट है, वो मेरे लिए लॉस है। वो सारी तरह की एंट्री आपकी जाती है जर्नल प्रॉपर के अंदर। ओके, व्हाट इज मोर प्रेफर्ड, जर्नल और जर्नल प्रॉपर? मैंने अभी भी बताया कि जर्नल और जर्नल प्रॉपर के अंदर प्रेफरेंस जैसी कोई चीज नहीं है एज ऑफ नाउ आपके लिए। तो जब हम बात करते हैं कि जर्नल प्रॉपर हम बना रहे हैं, दैट मीन्स वी आर गोइंग टू यूज सब्सिडरी बुक्स, अदर सब्सिडरी बुक्स आल्सो अलोंग विद इट, राइट। मगर जब आप जर्नल बनाते हैं तो आप सब्सिडरी बुक्स को प्रेफर नहीं करते, राइट, तो आप सिर्फ जर्नल ही बनाते हैं। तो इन दिस केस अगर आप, क्योंकि अभी आप पढ़ रहे हैं, तो practically मैं देखूं तो you can use any of them. It is nothing like which is going to be preferred more. It is completely on accountant wish and will, वो क्या बनाना चाहता है, क्योंकि दोनों से रिजल्ट एक ही डिराइव होता है। मगर अगर हम देखें आपकी एज अ स्टूडेंट, तो आपको क्वेश्चन में जो लिख कर आएगा आपको वही बनाना है। अगर जर्नल मांगा गया है तो जर्नल बनाइए, जर्नल प्रॉपर मांगा गया है तो जर्नल प्रॉपर बनाएंगे आप, राइट। वो आपको क्वेश्चन बताएगा विच वी आर गोइंग टू डू लेटर विद द चैप्टर। ओके, ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन विल टेल यू, मैंने अभी भी बताया कि क्या सब्सिडरी बुक्स बनती हैं क्या नहीं बनती हैं, वो सब क्वेश्चन ही स्पेसिफाई करता है। वेट एंड वॉच, राइट। सो यू नीड टू सी क्या आगे आने वाला है हमारे पास। ओके, लेट्स मूव ऑन टू समराइजिंग। सो समराइजिंग इज डन इन ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस का मतलब है कि जो सारे लेजर अकाउंट्स आपने प्रिपेयर किए थे, वो सारे बैलेंसेस, अब आप उन सब का नेट बैलेंस निकाल लीजिए। नेट बैलेंस का मतलब होता है उनका नेट इफेक्ट निकालिए, राइट। तो नेट इफेक्ट में आपके पास जो भी बैलेंस आ रहा है वो जाएगा ट्रायल बैलेंस में। ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट जो आपको बताएगा कि आपने जो भी अकाउंट्स बनाए हैं उसमें कोई भी कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं है, इफ इन केस इट मैचेस, राइट। अगर ट्रायल बैलेंस आपका दोनों साइड मैच नहीं करता है तो इसका मतलब है कि आपने कैलकुलेशन में कुछ गलती की है। ओके, कैन आई एक्सप्लेन लेजर अकाउंट अगेन? यस, श्योर बच्चे। So let me explain ledger account. So ledger, why shouldn't I show you the ledger account? Um, let me show it to you. Okay. कुछ ऐसा दिखेगा आपका लेजर अकाउंट। आप यहाँ देखिए मेरे साथ आपकी स्क्रीन पे दैट ये जो अपना लेजर अकाउंट है जो ग्रीन एंड येलो कलर से दिख रहा है, कुछ ऐसा दिखता है हमारा लेजर अकाउंट। जैसे एक साइड हो जाती है हमारी, सेम ऐसे ही कॉलम्स बनाएंगे आप भी। तो यहाँ पे हमारे पास वेजेस अकाउंट बना हुआ है विच इज हैज डेट पर्टिकुलर्स जर्नल, जर्नल फोलियो जेएफ होता है ये, अमाउंट डेट पर्टिकुलर जर्नल फोलियो अमाउंट। तो ये मेरा एक साइड कहलाता है डेबिट साइड। दैट मीन्स जो आपके लिए आपके लेफ्ट हैंड साइड पे पड़ रहा है वो आपका कहलाता है डेबिट साइड, और जो राइट हैंड साइड पे पड़ रहा है वो कहलाता है आपका क्रेडिट साइड। रूल्स कैसे होते हैं, क्या हम डेबिट में लिखते हैं, क्या हम क्रेडिट में लिखते हैं, वो सब हम करेंगे जब हम आगे पढ़ेंगे, राइट। बट फिलहाल कुछ ऐसा दिखेगा आपका लेजर अकाउंट। अब जो ये आप बैलेंस कैरिड डाउन देख रहे हैं यहाँ पर कैपिटल अकाउंट के अंदर, मेरे साथ देखिए, कैपिटल के का जो आप यहाँ पर देख रहे हैं टू बैलेंस कैरिड डाउन, ये कहलाता है इसका नेट बैलेंस यानी कि नेट इफेक्ट। तो बेसिकली ये जो अमाउंट है लेजर का कैरिड डाउन टू बैलेंस C/D इज कॉल्ड कैरिड डाउन। ये अमाउंट आप लेकर जाते हैं अपने साथ ट्रायल बैलेंस के अंदर, राइट। ओके, सो ट्रायल बैलेंस के अंदर हम जो भी ये अमाउंट था हमारे कैपिटल में 1 लाख रुपीज, वो आप ट्रांसफर करके दिखाएंगे। So this has to be shown in trial balance. So let me show you trial balance also, how trial balance appears. But ये कैसे आ रहा है इसके अंदर अमाउंट, ये सब हम तब समझ पाएंगे बेहतर तरीके से जब मैं आपको इसके रूल्स बताऊंगी,
right? So this is how it is going to appear. Let me show it to you. This is how it will appear. Look on your right side, trial balance. So we have got debit and credit side. ऐसे accounts लिखे जाएंगे आपके, cash, account receivable, office supplies, जैसे यहाँ लिखे हुए हैं. कुछ चीजें जा रही हैं डेबिट में, कुछ चीजें जा रही हैं क्रेडिट में. सो डेबिट और क्रेडिट में कैसे जा रही हैं वो आप अभी मत पूछिए, और आपको समझ में भी नहीं आएगा, बिकॉज देयर आर रूल्स फॉर इट. ये डेबिट और क्रेडिट में जैसे जाएंगी, ये आपका जब आप टोटल करेंगे तो देखिए टोटल दोनों साइड $23,000 आ रहे हैं. दैट मीन्स ये मैच कर रहा है. सो सिमिलरली योर ट्रायल बैलेंस इज ऑल्सो गोइंग टू मैच. एंड ट्रायल बैलेंस, यस, इट इज अ स्टेटमेंट. दैट मीन्स ये ट्रायल बैलेंस हम इस तरह से भी बना सकते हैं, इसका अलग फॉर्मेट भी आप यूज कर सकते हैं. सो यू कैन यूज इट एनी वे as an accountant, but for you as of now, since you are the student, you have to do it like this in the format which we are going to study. Okay. Now how can we, ma'am, how can we define trial balance? So trial balance is a statement which shows the arithmetical, or which is used for checking the arithmetical accuracy of the accounts, right? तो अगर आपके accounts सही बने हैं तो आपको दिख रहा है कि डेबिट और क्रेडिट साइड जो ट्रायल बैलेंस में है यहाँ पर, वो ऑटोमेटिकली मैच कर रहा है. सो दिस इज हाउ ट्रायल बैलेंस इज गोइंग टू लुक, राइट, और गोइंग टू अपीयर. नाउ कम बैक टू व्हाट वी वर डिस्कसिंग. सो ट्रायल बैलेंस में आपने समराइज किया. The next is trading and P&L account. So trading and P&L account. Ma'am, what is the difference between debit and credit? Okay. फिलहाल हम ऐसे समझते हैं कि डेबिट एंड क्रेडिट आर द टू एस्पेक्ट्स ऑफ द अकाउंटिंग प्रोसेस. डेबिट क्यों होता है, कब होता है, कैसे किया जाता है, क्रेडिट किस चीज को किया जाता है, कब किया जाता है, वो मैं सब आपको अगली क्लासेस में बताऊंगी. फिलहाल लेट्स कंप्लीट व्हाट वी आर डूइंग. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छा टॉपिक है, हम इसमें बहुत जल्दी आने की कोशिश करेंगे. ओके, लेट्स मूव फर्दर. सो वी हैव गॉट समराइजिंग के अंदर ही यहाँ पे ट्रेडिंग एंड P&L एंड बैलेंस शीट लिख दिया गया है. ये यहाँ नहीं होता है, ये बुक में गड़बड़ है. इट विल कम अंडर एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन. सो एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन के अंदर we will be preparing our final accounts. So final account involves trading and P&L account and balance sheet. So trading, P&L and balance sheet, final accounts format, let me show it to you. Okay. So this is how it is going to appear. Okay. So ये आप देखिए यहाँ पे. Okay, नहीं, ये ऐसा नहीं दिखेगा. This is our balance sheet wherein we have liabilities and we have assets, right? तो अभी जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो ये है कि इसी के साथ साथ हम ट्रेडिंग एंड P&L भी बनाते हैं. I think this would serve. Yes. So this is trading account. तो ट्रेडिंग अकाउंट ये आपका फॉर्मेट कुछ ऐसा दिखता है, राइट? सो थ्रू ट्रेडिंग अकाउंट आप देख रहे हैं यहाँ पे लास्ट में लिखा हुआ है, बिल्कुल आप नीचे देखिए, ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. तो ये ग्रॉस प्रॉफिट निकाला, नेट प्रॉफिट निकाला, एंड देन वी प्रिपेयर बैलेंस शीट. सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड आवर फाइनल अकाउंट. सो फाइनल अकाउंट जो आपका आता है वो आपने बनाया so as to understand that what is the net result of all the transactions that you have performed during the year. That means whether it is resulting into profit, whether it is resulting into loss. This is what we are going to determine by preparing our trading and P&L account. Next is final balance sheet, which is again a statement, because इसके अंदर डेबिट और क्रेडिट साइड नहीं होता. जो भी मैं आपको स्टेटमेंट कहती हूँ, स्टेटमेंट में जो फॉर्मेट होता है वो बदल सकता होता है. अकाउंट का फॉर्मेट वैसा ही रहेगा जैसा हम पढ़ते हैं. तो अकाउंट और स्टेटमेंट के अंदर बेसिक फर्क ये रहता है, पहली चीज. दूसरा, बैलेंस शीट भी एक स्टेटमेंट है, और स्टेटमेंट है तो ये ऑटोमेटिकली मैच भी करेगी. सो बैलेंस शीट इज गोइंग टू शो यू द बैलेंस ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज. एसेट्स वो होते हैं जो आपके हैं, जिसको आप यूज कर रहे हैं बिजनेस करने के लिए, राइट? सो बिजनेस करने के लिए जो भी प्रॉपर्टी आपके पास है, या ऐसा कहें कि जो भी पैसे आपको मिलने हैं, जो आप रिसीव करेंगे दूसरों से, दैट इज कॉल्ड योर एसेट. So it is all going to be shown in balance sheet. Then on the other side of the balance sheet, you are going to show your liabilities. That means the obligation. That means the amount that you are or you should be paying to the others. So that is called liability. So जब आप assets और liabilities को record करेंगे balance sheet के अंदर, so both are going to match, right? So this is what balance sheet is.
So by preparing trading, profit and loss account and balance sheet, we are going to analyze and interpret. So by interpreting, we means that we are going to draw the conclusion that what is the information, what is the final outcome of the information that we have prepared, starting from journal till final accounts. तो उसका मतलब क्या हुआ सारा, वो फिर हम communicate करते हैं to the users, right? So this is what it is. और ये आपका अकाउंटिंग साइकिल भी है, यही आपका अकाउंटिंग प्रोसेस भी है. मैंने इसके ऊपर 2 क्लासेस आपको इसलिए पढ़ाया बिकॉज आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि ये एक्चुअली क्या है, क्योंकि जो ये आप पढ़ रहे हैं अभी, इसे ही आप अपने सारे चैप्टर्स के अंदर करने वाले हैं. सो प्लीज अंडरस्टैंड इट वेरी थॉरली. ओके ओके, so I think we have only got 3.5 minutes left. So if there are any doubt, I would request you all to write down your doubts in the chat box or unmute yourself and you can always speak it out. But otherwise, इसके अलावा हमने characteristic finish कर ली है. We have completed accounting cycle, accounting process in detail, in at length. So I'll be forwarding you this PDF file today. Please refer it, read it, understand it very properly, right? Okay. Next topic, branches of accounting है हमारे पास, but branches of accounting is not a very major topic, so we will not be focusing that much. So branches of accounting, basically, in short, it means that, okay, there is a request, ma'am, please explain interpretation again. Interpretation, okay, आपने अकाउंट्स बनाए, उसमें आपने प्रॉफिट या लॉस निकालकर बता दिया कि ये प्रॉफिट या लॉस है और ये मेरी बैलेंस शीट है जिसमें मेरे एसेट्स और लायबिलिटीज दिख रहे हैं. अब ये आपका सिर्फ आपने अकाउंट्स बताए हैं. एवरीबडी इज नॉट साउंड इन अकाउंटिंग, राइट? सो व्हाट इफ anybody is unable to understand that financial statement? How is that person going to use your financial information? So for that we need to interpret the information. So interpretation का मतलब होता है कि वो financial data जो आपके अकाउंटिंग फॉर्मेट में है, उसको, उस डेटा को, उस अकाउंट्स को आप निकालिए उस फॉर्मेट से बाहर, उसको सिंपल वर्ड्स में बताइए कि उसका क्या मतलब निकला, राइट? तो जो उसका मतलब है, जैसे अगर मैं एज अ कस्टमर देख रही हूँ या मैं एज अ मनी लेंडर देख रही हूँ, तो मुझे समझ में आना चाहिए कि आपके अकाउंट्स का मतलब था क्या. जो आपके अकाउंट्स का मतलब है वो ही मुझे हेल्प करेगा मेरे डिसीजन को लेने के लिए. तो इसीलिए अब मैं नेक्स्ट टॉपिक जो आपको कल पढ़ाऊंगी वो पढ़ाऊंगी पार्टीज इंटरेस्टेड इन डिसीजन मेकिंग, जिससे आपको समझ में आए कि हम किसको कम्युनिकेट करते हैं, राइट? ये सब जो चीजें मैं आपको भेज रही हूँ, आई वॉन्ट यू ऑल टू मेक अ रजिस्टर, राइट? You can read it and write it in your own words, or can use the multiple information which is available to you on a particular topic. आप अपना Google use कर सकते हैं, PDF use कर सकते हैं, PPT use कर सकते हैं, कुछ भी use कीजिए. I want you to write your own notes. I'll not be providing you with any other notes in writing, right? तो मैं कुछ भी dictate नहीं करने वाली हूँ आपको यहाँ पर. आप अपने हिसाब से लिखिए, लिखना शुरू कीजिए. जो जो टॉपिक मैं आपको पढ़ाती जा रही हूँ, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज रीड इट and write it in your notebook by yourself, right? Okay, we are left with 1 minute or less, so I would suggest you all to please ensure that you are reading every day. Accountancy is to be studied every day, right? और जो भी यहाँ पे हमने अभी डिस्कस किया है वो सब चीजें मैंने आपको पढ़ाई थी पहले, वो सब चीजें मैंने आज आपको रिवाइज करवा दी है. So I'll not be taking any revisionary class for this session. ये हम ऑलरेडी अभी डिटेल में समझ चुके हैं जो भी मैंने आपको पहले लिया था, पढ़ाया था. Okay, and okay, there's again one question: how can we define balance sheet? So balance sheet is a statement showing the balance of asset and liabilities of any organization on one last day of the year. तो जिस दिन भी हमारा साल खत्म होगा, be it 31st December or 31st March, उस दिन आप बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं, showing the balances of your assets and liabilities, right? I think I have answered all your doubts. Please take care and keep yourself safe, right? Thank you, everybody.